وی آر آپ کب سے ہیں؟ اوکے سوری. ہم گفتگو بعد میں کریں گے. السلام علیکم میم، آپ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ویسے تو ہمیں آئی ڈونٹ نو، جب تک کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا تب تک ہم گفتگو کرتے ہیں. تو ہم خاصی 15 منٹ سے باتیں کر رہے تھے اور آپ سے باتیں کرنے کا مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں آپ کی پرسنل ہسٹری ڈھونڈ رہی تھی، تو میں نے اتنا گوگل کیا، ویڈیوز اور ریسرچ لنکس. کیوں ہمارے یہاں رائٹر کی پرسنل ہسٹری کیوں نہیں ہوتی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتا. مطلب ایز اے رائٹر میں آپ کو میں آئیڈیلائز کر رہی ہوں، میں آپ کو جان رہی ہوں، میں آپ کو فالو کر رہی ہوں. آئی وانٹ ٹو سی کہ جب ہمارے پہ جو مسائل آتے ہیں، جب آپ پر آتے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیسے اس کو انڈیور کیا؟ ایکچولی اس میں میرا شاید زیادہ رول ہے کہ میرے پاس اتنا مٹیریل اویلیبل نہیں ہے. میں سچ کوئی زیادہ شہرت کے ساتھ میرا کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے مجھے کہ میرا نام، میرا کام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. جتنا آ گیا آ گیا. میں نے خود ہی شاید اس پر لوگ کرتے ہیں، اپنے لیے خود کام کرتے ہیں، میں نے نہیں کیا. اور اسی طرح انٹرویوز کے لیے بھی 10 انٹرویوز کے لیے میں انکار کرتی ہوں، اس کے بعد میں ایک انٹرویو پر آ جاتی ہوں. چلو اگر آپ کی طرح بہت زیادہ کوئی مجھے پکڑ لے تو اس کی وجہ یہ ہے. میں سوچا کرتی ہوں کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے. مزید ڈھونڈنے والے ڈھونڈ نکالیں گے اور جب سامنے لانا چاہیں گے لے آئیں گے. بڑے زیادہ کارنامے میں نے بھی نہیں کیے ہیں، تو اس میں میرا قصور زیادہ ہے. میم لیٹ می سے سم تھنگ. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے مجھے، میں جتنا ایزی رہی ہوں آپ کے ساتھ، آپ نے تو مجھے ریفیوز ہی نہیں کیا. میں حیران ہوں کہ آئی ایم جسٹ کمنگ آؤٹ آف نو ویئر اینڈ یو ایکسپٹ مائی آفر. میں آپ کو پرپوز کر رہی ہوں کہ مجھے انٹرویو دے دیں اینڈ یو ایکسپٹیڈ اٹ. آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ اباؤٹ اٹ کہ ماشاء اللہ آپ نے اتنی پولائٹنس شو کی ہے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ، پہلی بات. اور دوسری بات کہ میں بھول گئی. میں کیا بھول گئی؟ آپ کی بتا رہی تھی کوئی بات، مجھے اس کے جواب دینا تھا، میں بھول گئی. دیکھیں میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم دونوں ایک ہی عمر کی ہیں. نہیں، آپ میری بیٹی کی عمر کی ہیں جو دبئی میں ہے، اور میں یقیناً آپ کی ماں کی عمر کی ہوں. یقیناً. اور میم میں واقعی بڑی سرپرائز ہوئی اس بات پہ. اور میں 3 ہفتے پہلے چھوڑ کر جا چکی ہوتی، لیکن میں آپ کے انٹرویو کے لیے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس کے لیے اتنی ریسرچ کی، میں نے اس کے لیے اتنا جانا، میں نے جتنا بھی مجھ سے ہوا میں نے ڈھونڈا، لیکن مجھے نہیں ملی آپ کے بارے میں پرسنل انفارمیشن، کہیں سے بھی نہیں ملی. تو ایک تو یہ، میں آپ کے بارے میں، آپ نے کہا آپ کے بارے میں نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھتی ہوں پاکستان میں یہ عام طور پہ ہے. کیوں ہمارے ہاں لیجنڈز جو ہیں وہ کیوں اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے؟ ہم لوگ سننا چاہتے ہیں، ہم لوگ سننا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگ بتانا نہیں چاہتے. یہ ایسا ٹرینڈ کیوں ہے یہاں پہ ہمارے یہاں؟ پاکستان میں بہت سے رائٹرز کے بارے میں بہت سا مواد پڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سے رائٹرز ایسے گزرے بھی ہیں، ابھی بھی ہیں، جو اپنے بارے میں زیادہ بات نہیں کر پاتے، ضرورت محسوس نہیں ہوتی، شائع ہوتے ہیں. تھوڑا سا لگتا ہے کہ ادروائز ہے. میرا خیال ہے کہ بہت سے رائٹرز ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا. اور دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ رائٹر کا ریڈر یا پلے رائٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو رائٹر کا ویور، وہ خود اسے ڈھونڈے، وہ خود اس کے بارے میں لکھے، وہ خود جانے. آپ نے بھی کیا نا. تو ابھی جب ہم انٹرویو کریں گے تو بہت سے سوالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاؤں گی. میرا اپنا خیال ہے کہ کسی بھی رائٹر کے مزاج میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کہے
کہ میں نے یہ بڑا بڑا کام کیا ہے اور یہ مجھے میرے کریڈٹ پر یہ کچھ آتا ہے. یہ بڑا مشکل کام لکھنے والے کے لیے، یہ بہت ہی شرمانے والا کام ہے. وہ نہیں کر سکے گا کوئی بھی لکھنے والا جینوئن رائٹر. میم رائٹر نہیں کر سکے گا، لیکن یہ ہونا چاہیے. مطلب میں نے جب انٹرنیشنل میں پڑھتی ہوں تو پاولو کویلو کی بایوگرافی موجود ہے، سڈنی شیلڈن کی ہے، اوپرا ونفری کی ہے، جتنے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس ان کی بایوگرافیز موجود ہیں. لیکن پاکستان میں حکومت کے لیول پہ بھی، کسی بھی لیول پہ، اور آپ نے خود ہی بتا دیا کہ رائٹر تو ہوتے ہی شائع ہیں تو وہ نہیں کریں گے. تو یہ بہت بڑا ویکیوم ہے وہاں پہ کہ آپ کو لیجنڈز کی بایوگرافیز نہیں ملتی ہیں. دیکھیے یہ پاکستان میں ہے. پاکستان میں رائٹر یا پوئٹ یا وہ کیا سوچتا ہے، سوچ وہ کیا بولتا ہے، اس کی زبان وہ جو بولتا ہے، اس سے ہر دور کی حکومت گھبراتی رہی ہے. یا تو رائٹر کچھ ہلکا سا بولے، ہلکی سی سوچ رکھتا ہو، محدود سوچ رکھتا ہو، اور ہر دور کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومتوں کو سے کوئی پرابلم نہ آتی ہو، پھر اس کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، انڈیا میں رائٹرز پر بڑا کام ہوتا ہے. پاکستان میں رائٹر کی اہمیت نہیں ہے. پاکستان میں اگر رائٹر کی اہمیت ہوتی تو قرۃ العین حیدر ایک خزانہ ہے، وہ آ کر واپس نہ چلی جاتی. منٹو یہاں خون تھوک کر ختم نہ ہو جاتے. اور ایسی کئی مثالیں ہیں. بلکہ رائٹرز پر پاکستان میں سندھی رائٹر میں اگر بتاؤں آپ کو کہ سندھی رائٹرز تو غداری کا سرٹیفکیٹ بھی، ان پر غداری کے وارنٹس بھی نکل چکے ہیں، وہ جیلوں میں بھی جا چکے ہیں. لیکن آپ اردو میں بھی دیکھیں، فیض صاحب دیکھ لیں، اور اس طرح کے بہت سے جنہوں نے جو جیل اور سارا. سو پاکستان کو رائٹر سوٹ نہیں کرتا ہے ایکچولی. جسے آپ رائٹر کہیں، جسے آپ پوئٹ کہیں. حبیب جالب لاٹھیاں کھاتے رہے، سب آپ کے سامنے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے. مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے پالیسی میکرز کو رائٹرز اور پوئٹ وہ سوٹ نہیں کرتے. صحافی بھی اس میں ڈال دیں، لکھنے والے صحافی جو ہیں وہ بھی ڈال دیں اس میں. صحافی بھی سوٹ نہیں کرتے ہو؟ صحافی بھی سوٹ نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے دور بڑے روشن رہے ہیں، ہر دور میں ایسا رہا ہے. تو آپ کو پاکستان میں اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں، ایسا کچھ انڈیا بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہے، ہمارے سامنے ہے سب کچھ. مگر رائٹرز کی بڑی اہمیت ہے. ہوں گے رائٹرز ناراض کئی باتوں پر، ان کو اختلاف ہوگا، مگر ہے رائٹر پوئٹ، ان کی اہمیت ضرور ہے. آرٹ کی اہمیت ہے. بالکل. فلم کو ہی دیکھ لیں آپ، وہ ایک اپنے سرمایہ کے طور پر پرانی فلموں کو سنبھالتے ہیں. آپ کو ہماری کوئی بھی حکومت جب سے فلموں کی تباہی آئی ہے، آپ کو ماضی کی فلمیں یہاں یوٹیوب پر ملیں گی، مگر سرکاری سطح پر حکومت کے لیول پر کبھی بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہوا کہ یہ اتنا سنہرا دور رہا ہے، اس کو ہم سنبھال لیں. یوٹیوب پہ بھی نہیں ملیں گی، یوٹیوب پہ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح رقص کا فن جو ہے پاکستان میں اتنا زبردست رہا ہے، اتنے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس، اس تک منظر ہو گیا. کلاسیکل رقص ہے. تو ایکچولی آرٹ ہی جو ہے، اب تو خیر ہم ایک اور ایکسٹریم پر کھڑے ہوئے ہیں. آرٹ جو ہے وہ پاکستان کے پالیسی میکرز کو، پالیسی میکرز بھی یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی ڈیسائیڈڈ پالیسی ہے نہیں، تو آپ کی پالیسی ہر دوسرے دن بدل جاتی ہے.
पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को आर्ट सूट नहीं करता है, तो इसलिए आपको यहाँ ये मामला नजर आएगा। फिर भी जो कुछ भी आपको थोड़ा बहुत नजर आता है वो लोगों की मेहनत, लोगों ने संभाला है, बहुत से शायरों के, अदीबों के काम को, सो जिस हद तक संभाल सके। तो क्या करें, आर्टिस्ट, राइटर्स, ये लोग क्रिएटिव माइंड्स क्या करें, पाकिस्तान में क्या करें, ये लोग कहाँ जाए? मैं तो देख रही हूँ कि वो कुछ भी नहीं करो कि उस पर पोजीशन पर धकेले जा रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ भी नहीं करेंगे आगे जाकर, जो करेंगे उसका सामने आना मुश्किल तर होता जाएगा। लेकिन फिर भी आर्ट एक ऐसी चीज है, खासतौर पर लिखना जो है, बाकी तो आपने जो भी कर दें, परफॉर्मिंग आर्ट का जो भी हशर कर दें, जो भी हो जाए वो अपनी जगह, लेकिन लिखने का जो काम है, अफसाना निगारी है, कॉलम है, शायरी है, लिखना जो है उस पर जितनी ज्यादा पाबंदी लगेगी वो अपने रास्ते निकालना शुरू करेगा, क्योंकि ये खालिसतन सोच की चीज है ना। इंसान की सोच जो है वो पानी के बहाव की तरह है, आप एक जगह से उसको रोकेंगे तो वो दूसरी जगह से नदी नाले बनाकर चलना शुरू होगा। तो अब वो किस शक्ल में सामने आता है, किस रूप में सामने आता है, वो अपनी जगह है। फिर उस पर जो भी राय बने, जो भी सर्टिफिकेट्स निकले, लिखना बंद नहीं होता है, उसके रास्ते रोके जाते हैं। लोग लिखेंगे, लिखने वाले लिखते रहेंगे, जो डर जाएंगे वो भी लिखेंगे, जो नहीं डरेंगे वो भी लिखेंगे, मगर ये काम चलता रहेगा। लेकिन मजमूई तौर पर हम आर्ट की सूरत हाल देखें तो वो तो ऐसा लगता है कि एक कोने में खड़ा करने वाली बात आ रही है, क्या कुछ भी ना। जहां आर्ट, जिस समाज में आर्ट मर जाए, मार दिया जाए, मजमूई तौर पर पूरा आर्ट, जिस समाज में आर्ट मार दिया जाए, उस समाज के लोगों के अंदर से नफासत खत्म हो जाती है, नरमी मर जाती है। ये नफासत और नरमी ये आर्ट के थ्रू आती है, चाहे वो तसव्वुफ ही क्यों ना हो, उसे भी इंक्लूड कर दें, चाहे वो सूफियों का कलाम क्यों ना हो, उसे भी इसमें इंक्लूड कर दें। जिस समाज में इन चीजों के रास्ते बंद हो जाएं, वहां इंसान के अंदर से नरमी खत्म हो जाएगी। जो इंसान सामने आएगा वो यही माँ बहन की गालियां देता हुआ जो आपको सोशल मीडिया पर नजर आता है, और फांसी दे दो, लटका दो, काट दो, मार दो, वगैरह वगैरह, घसीट दो, पत्थर मारो, ये करो वो करो, ये इंसान बाकी बचेगा और इस खुशफहमी में मुब्तला बचेगा कि मैं सही हूँ, जबकि वो सही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो आप बहुत ऊपर की बात कर रही हैं। मैं आपको बहुत नीचे की बात बताऊं तो मैं तो अब ये देखती हूँ कि अगर हम प्ले राइट की बात करें तो आप तो अपने जमाने में फिर भी नजर आते थे, आप लोग, हसीना मोइन थी, आप थी, फिर भी हमें पता चलता था कि ये राइटर है। आजकल तो राइटर का सिवाय नाम के प्ले राइट में, ड्रामों में राइटर का सिवाय एक नाम के राइटर कहीं नजर ही नहीं आता। किसी मजाक में, किसी मुबाहसे में, किसी सेमिनार में, कहीं कहीं भी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे एक क्रिएटिव माइंड को होना चाहिए, वो वहां पे है ही नहीं। आपको नहीं लग रहा कि ऐसा भी कुछ है? ऐसा है कि वजह और है। खैर हसीना डायरेक्टली मेरा ख्याल है रेडियो के ड्रामा से आई थी, अदब से उनका, मगर उन्होंने लिखा भी है शायद कुछ, जहां तक मुझे याद पड़ता है, किश्तवाड़ कोई नॉवेल वगैरह भी, कोई ऐसी चीज उन्होंने लिखी भी हुई है। लेकिन असल में जो जिनकी आप बात कर रही हैं कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आते थे और बात करते थे और अब नहीं होता है,
हमारे दौर में या मुझसे पहले जो लोग थे, ये सब अदब से आए थे, लिटरेचर से आए थे, और ऑलरेडी अपना थॉट पब्लिक के सामने रख चुके थे। और ऑब्वियसली लिटरेचर के प्लेटफॉर्म से भी वो बात किया करते थे, और फिर जैसे जैसे पब्लिक में बात करने का प्लेटफॉर्म ज्यादा वसी होता गया, तो उस तरह से वो अपना पॉलिटिकल एक थॉट भी सामने ले आते थे। अब जो राइटर्स हैं, प्ले राइट जो है वो एक्चुअली डायरेक्टली ड्रामा में आया है, ड्रामा से उसका ताल्लुक है, और ड्रामा में भी वो जरा पाबंद है, क्योंकि पहले जो राइटर्स आते थे वो पहले से अपना नाम लेकर आते थे, अपना काम, अपने एक इमेज होता था उनका। अब जो ज्यादातर आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैनल्स हैं, चैनल्स चलाने वाले लोग हैं। वो तो बात वैसे भी नहीं करने देते, 100 खामियां उनके काम में से निकलती हैं, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल, मैंने भी इसी फील्ड में इस तरह का काम बैठकर किया है, चैनल के प्रोग्राम्स डिजाइन करना और चैनल को हैक करना। असल में मैंने, ये बड़ी बिटर सी बात है, मगर जो चीज मेरे सामने आई है वो ये है कि राइटर्स का, खास तौर पर फीमेल राइटर्स का, मेल राइटर्स का भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बुरी तरह नीचे किया जाता है। जी, आपके लिए तो ऑनर है, हम आपसे ड्रामा ले रहे हैं, और वरना ये तो कोई भी ना लेता। उसके बाद उसमें कितने कीड़े निकलते हैं, वो बेचारा सिर्फ हाथ जोड़ता रह जाता है कि भाई मेरा काम ले लो, मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे किचन चलाना है। पीटीवी के पैसे किचन नहीं चलता था, कम पैसे होते थे कि किसी का भी घर नहीं चलता था उससे, लेकिन अब घर चलता है। अब जब घर चलता है राइटर का, ड्रामा राइटर का, तो वो मजबूर हो जाता है। वो कहता है कि जैसा आप कहेंगे मैं करूंगा, मुझे मेरे, ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादती भी है। और इस वक्त तो खैर तबाह हो चुका है पूरा ये इंडस्ट्री जो है ड्रामा की, एंटरटेनमेंट की, बल्कि न्यूज की, सारा जो टेलीविजन के, सो बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। राइटर्स, डायरेक्टर्स, चैनल्स में, एंटरटेनमेंट चैनल में, न्यूज चैनल्स में काम करने वाले लोग 6-6 महीने, 8-8 महीने तनख्वाहों के बगैर बैठे हुए हैं। इस सूरत हाल में ऐसा ही ड्रामा लिखा जाएगा, और इस सूरत हाल में किसी को फुर्सत नहीं है कि समाज का दुख लेकर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर बैठे। बिल्कुल। इसके लिए बड़ा मजबूत एक कुछ चाहिए कि आपको अपना दुख ना हो, अपने मसाइल ना हो, फिर आप सारे जमाने का दर्द जो है लेकर खड़े हो जाए कि इसका हल ढूंढो। ये प्रॉब्लम। मैम, अब ये आपने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई। एक तो आपने बताई कि राइटर मजबूर हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा पर्टिकुलर करें। मुझे बताएं कि औरत मजबूत कैसे होती है। राइटर, एज अ राइटर तो वो मजबूर कर दी जाती है, लेकिन एक औरत मजबूत कैसे होती है, उसको मजबूत होने के लिए क्या चाहिए? देखो, मैं आपको बताऊं कि औरत को ये एहसास हो जाए ना कि वो औरत मर्द के खाने में बटी हुई नहीं है, वो एक इंसान है, तो मजबूत हो भी जाती है। औरत से ज्यादा मजबूत मैंने मर्द को इतना मजबूत नहीं देखा जितना मैंने औरत को मजबूत देखा है। वो औरत भी जो दुखी है वो भी मजबूत है, दुख सहती है, सरवाइव करती है, सर्वाइवल के लिए कोशिश करती है। ये मजबूत लोगों का काम है। हम उसकी जो पिक्चर सामने ले आते हैं वो ले आते हैं मजबूर की और बेबस की और रोती हुई औरत की। जब उसे औरत बनाते हैं तो हमें वो मजबूर और बेबस लगती है, लेकिन जब हम उसे इंसान के रूप में देखें तो वो हमें
अपने घर के, अपनी जिंदगी के किसी भी मर्द के ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी, ज्यादा बर्दाश्त करती हुई नजर आएगी। अपने वजूद का एहसास इंसान को मजबूत कर देता है, अपने हक का एहसास, अपने वजूद का एहसास कि मैं भी उतना ही हक रखता हूँ जीने के लिए, उसको मजबूत कर देता है। अब विड्रॉ कर जाए, हथियार फेंक दें, सरेंडर कर दें, तो फिर तो मर्द भी वैसा ही है, सरेंडर करने के बाद मर्द भी कमजोर है। मैम आपकी ये बात मुझे लगता है कि हमारे छोटे राइटर्स को तो समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कोई 500 राइटर से बात की कि आइए, मुझे तो पता था कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, लेट्स टॉक अबाउट इट। दे आर नॉट रेडी टू अपीयर ऑन स्क्रीन, उनको प्रॉब्लम्स हैं, वो उनका ख्याल है कि वो जकड़े हुए हैं, वो मजबूर हैं, वो बात नहीं कर सकते। तो मुझे तो इतनी पथेटिक पिक्चर सामने आई कि आपसे आप बात कर रही हैं औरत राइटर की, या आप बात कर रही हैं औरत ड्रामा राइटर की, मैं बात कर रही थी सोसाइटी के हवाले से। हाँ, दोनों की बात करते हैं। मैंने आपको ये बात बताई अभी कि राइटर्स के साथ होता क्या है। राइटर्स स्क्रिप्ट उठाए चैनल्स के धक्के खा रहे होते हैं। देखिए, मैं जब ड्रामा लिखती थी, मैं हैदराबाद में रहती थी जब मैंने शुरू की। कराची टेलीविजन के स्टेशन पर मीटिंग के लिए नहीं बुलाई गई, एक बार बुलाई गई। बड़ा सख्त जवाब, जमाने में लेटर आता था, लेटर लिखकर मैंने बड़ा सख्त जवाब दे दिया कि मैं नहीं आ रही, अगर आपको इस काम के लिए मुझे बुलाना है। उसके बाद मैं सबसे आखिर में वहां, मेरे बाद मेरा ख्याल है कि मैं और उसका नदीम एक ही दौर के तकरीबन आगे पीछे हैं। मैं जब जाती थी कराची टेलीविजन, तो मैं जीएम के कमरे में जाती थी, मुझे प्रोड्यूसर रिसीव करता था, मुझे बड़ी इज्जत से। इसी तरह हसीना, इसी तरह बजिया, इसी तरह लाहौर के सारे राइटर सब इसी तरह थे, एक बड़ी रिस्पेक्ट थी उनकी। मेरा मूड नहीं है कराची आने का तो डायरेक्टर आ जाता था हैदराबाद मेरे साथ डिस्कस करने। अब क्या है कि मैं देखती हूँ कि उन राइटर्स को, राइटर बड़ा सेंसिटिव होता है। मोमना दुरैद ने जब काम शुरू किया था, शुरू बिल्कुल ही अभी इब्तिदा की थी और स्क्रिप्ट्स पर वो बैठी थी, तो मैंने उनको एक बात कही थी जो उन्होंने फिर मुझे याद दिलाई। क्या मुझे कहा, कभी भी आप किसी के स्क्रिप्ट पर उस राइटर के सामने बैठकर लकीर ना खींचे, इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता, इससे बड़ी इंसल्ट हो नहीं सकती। आप लकीर खींच के कहें कि ये गलत लिखा हुआ है, आप कहें मेरे ख्याल में ये उस तरह नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। राइटर, हमने जो राइटर्स देखे हमेशा, और राइटर फितरी तौर पर भी ऐसा है, बड़ा अपने लाड उठाने वाला है। अदीब और शायर जो होते हैं अपने लाड उठाते हैं, चाहते हैं कि उन्हें उठाया जाए। हमारा उनके साथ ये रवैया होगा कि उसने रात भर जाग कर लिखा है, बुरा भला, मगर रात भर राइटर जागी है। अच्छा, फीमेल राइटर की अगर हम बात करें, रात भर वो जागी है, उसने शौक बातें भी सुनी है, उसने अपने रोते हुए बच्चे को भी चुप कराया है। बच्चा उसका मे भी बुखार में भी हो, हम फोन करते हैं, हमें कल एनी हाउ स्क्रिप्ट चाहिए, कल शूट पे जाएगा, फौरन पहुंचाओ। इस सब के बीच में उसने जाग कर वो स्क्रिप्ट लिखा है। उस स्क्रिप्ट पर सुबह को आप लकीर खींच दें और कहें ये बुरा है, ये हो नहीं सकता, ये इंसल्ट है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, उसे कहें कि ये हमें जो चीज चाहिए ये उसके मुताबिक नहीं निकल रही,
क्या आप भी मजबूर हैं, आपको भी चैनल के हिसाब से एक चीज चाहिए तो आप कहें, इस तरह बात करें। मैंने जब एज डायरेक्टर स्क्रिप्ट्स, हम टीवी शुरू हुआ, वहाँ काम करना शुरू किया, तो डाइजेस्टों की एक राइटर थी, अभी भी हैं, निगहत अब्दुल्ला, नॉवेल्स लिख चुकी हैं, अफसाने, ये वो, बड़ी सरफरी, बड़ी फकीराना मिजाज, बड़ा बस ढीली ढाली सी आती थी। उन्होंने ऑब्वियसली अपना घर चलाती थी, छोटे छोटे यतीम बच्चे, शोहर था नहीं, और वो स्क्रिप्ट ले आती थी। तो मैं आज भी कहा करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि निगहत, ये स्क्रिप्ट किसको ना अगर ये कर दो तो ये बेहतर हो जाएगा। स्क्रिप्ट उठाती, मेरे ऑलमोस्ट मेरे मुंह पर मारते फेंक देते, मैं नहीं लिख रही, मैं मुस्कुराती रहती कि राइटर रात भर की जागी हुई है, बच्चों को सिंगल मदर है, इसका हक है ये लाड करना। अब यही हमारे राइटर, मैं कई राइटर्स को जानती हूँ जो मिडिल क्लास से आए हैं, जो अपना घर चलाती हैं, शौहर के साथ बराबर बराबर अपना हिस्सा अपने घरों में डालती हैं। शौहर भी उनके, जाहिर है कि वो शौकिया लिखने वाले बहुत कम हैं, जिनके मजबूत हैं, जिन्हें कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, बहुत आटे में नमक के बराबर। बाकी जो हैं वो कई जगहों पर सिंगल मदर है, कई जगहों पर अपना शौहर के साथ घर में हिस्सा डालने वाली हैं, बच्चों की फीस है, डॉक्टर, ये वो जब आते हैं चैनल में वो पैसा मांगते हैं। हमने 5 स्क्रिप्ट दे दिए, हमें पैसे दे दें, हमने 8 एपिसोड दे दिए, हमें पैसे दे दें। जवाब आता है कि अभी तो आपको पैसे दिए हैं, अभी तो आपको मिले हैं पैसे। ये तरीका नहीं है हमारे यहाँ इंसान की। आप ये पूछ रही हैं कि राइटर्स पर काम नहीं होता, लिखा नहीं जाता, उनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, कदर ही नहीं है, इंसान की कदर नहीं है। राइटर तो बेचारा सबकी नजर में और भी सेकेंडरी लाइन में चला जाता है। ये रवैया मजमूई तौर पर इस पर मीडिया में, एंटरटेनमेंट मीडिया में मौजूद है। मुझे बताएं, जो रात भर की जागी हुई जब बगैर पैसे लिए मायूस घर जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस कहाँ खड़ा हुआ होगा। और जब वो घर आई है तो शोहर, जाहिर है किराए में किसी चीज में उसने भी हिस्सा डालना होगा, और शोहर ने पूछा होगा कि पैसे तुम्हें मिल गए, और उसने कहा होगा कि नहीं। तो ये भी देखा है मैंने, बहुत सी मुझे अपना दुख सुख बताते हैं कि आगे से फिर तुम लिखती क्यों हो, फिर रात रात भर जाग कर बच्चे जो हैं सफर करते हैं, फिर ये क्यों करती हो अगर तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे। सो चैनल्स चलाने वाले इस मामले में बहुत बहुत सेल्फिश, बहुत जालिम हो चुके हैं। उनकी नजर में राइटर कोई हैसियत नहीं रखता है, वो सिर्फ बड़े आर्टिस्ट के आगे जो है सर झुकाते हैं, उनकी खुशामद कर लेते हैं, उन्हें खुश रखते हैं। बड़ा कोई डायरेक्टर है, अदरवाइज जूनियर डायरेक्टर भी इसी कतार में उनके आ जाते हैं। मैं कल किसी से बात कर रही थी कि मतलब आप इस वक्त इस इंडस्ट्री में बड़ी बेरोजगारी, बड़ी मुफलिसी आ गई है उन क्रिएटिव लोगों, जिन्होंने अपना शानदार काम जो है वो इससे पहले पेश किया है। तो अब औरत राइटर जो है, हमारी ड्रामा राइटर, वो कहाँ से कॉन्फिडेंस लाए। आप खेलते हैं उसके कॉन्फिडेंस से, आप खेलते हैं उसके कॉन्फिडेंस से, उसकी ईगो से खेलते हैं, उसकी ईगो को कर आप पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। आपका तो साइकिल पैसे का चल रहा है, आपका तो मजीद ड्रामों पर ड्रामे बन रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। मैम इस बात को भीतरी छोड़ते हैं, क्योंकि इस पे तो हम इतना बोलेंगे कि बहुत ज्यादा हमारे पास बोलने के लिए है। आप मुझे बताएं कि मुझे ये बताएं कि ये इंटरव्यू कितने घंटे, 1 घंटे का है। मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। मैम आपने बोलना है, और आप जितना बोल, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, आप जितना करना है आप बोले। चलो ठीक है। आप थक जाएंगी तो मुझे बता दीजिएगा, हम इसको बंद कर देंगे।
मैम अब मुझे ये बताएं कि वो 13 साल की बच्ची जिसने रोमांटिक नॉवल लिखा था, ओह और माय, और फिर जब उसने 26 साल की उम्र में जंगल लिखा, तो उसके दौरान का मुझे बताएं, उस बच्ची से लेके जंगल तक का सफर बताएं। ये बड़ा एक अजीब सा हंसी आती है। हम कोई मुझसे पूछता है आप कब से लिख रही हैं, कब शुरू किया था, तो मैं बड़ा शर्मा कर कहती हूँ कि मैंने भी बचपन से लिखना शुरू किया था। ये टिपिकल जवाब है एक्चुअली, जो जिसका मजाक उड़ाया जाता है, बट मैंने बचपन से लिखना शुरू किया। और मैं उस रोमांटिक नॉवेल से पहले बताऊं कि मुझे एक खातून क्लास 3 में ट्यूशन पढ़ाती थी लाहौर। अच्छा, मैं लाहौर में थी, मेरा बचपन पूरा लाहौर में गुजरा। वो बुर्का पहन के आती थी, चेहरा ढांप के अंदर आती थी, फिर वो अपने चेहरे से निकाब उठाती थी। तो उन्होंने, जिस तरह होता है हर बच्चे को, ये टीचर का 4 बजे आना जो है बड़ा बुरा लगता है, तो मैंने अपनी कॉपी के पीछे उनके खिलाफ कोई नज्म लिख दी, जो मुझे याद नहीं है, उनका रिएक्शन याद। और मैं भूल भी गई कि इसके पीछे मैंने कुछ लिखा हुआ है। ऑब्वियसली कॉपी उनके हाथ में आई, वो बैक पेपर जो है वो खुल गया उनके सामने, नज्म पढ़ी, तो उन्होंने मुस्कुरा कर, अच्छा इससे पहले ये बता दूं कि उन्होंने मुझे इतनी छोटी उम्र में मुझे क्यों ये बातें बताई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे मियाँ बहुत बड़े फिल्म साज थे, और उन्होंने उस जमाने में कुछ फिल्में जो नाम बताती थी उन्होंने बनाई, और उनका अचानक इंतकाल हो गया। मेरे 2 बच्चे हैं और हम फुटपाथ पर आ गए, और अब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और ये सारा मेरा हाथ, जो भी लिखा था मैंने, मेरा हाथ पकड़ कर उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना, तुम बहुत बड़ी राइटर बनोगी। बहुत बड़ी तो नहीं बन सकी, मगर राइटर खैर बन गई मैं। लिखती थी छोटी मोटी चीजें, फिर एक दिन नॉवेल लिख डाला। कहानी मुझे आज भी याद नहीं है, वो भी उस एज में लिखी कि ये याद है कि वो खासी रोमांटिक थी। मैम रोमांटिक था उसमें? लड़का और लड़की और उनका उनका इश्क, उनकी मुलाकातें, यही होगा, मैं समझती हूँ यही होगा। तो बाबा मेरे ने मुझे, उनके हाथ लग गई, उन्होंने पढ़ और लिया। रोमांटिक नॉवल पढ़ लिया? उन्होंने पढ़ लिया, पूरा नॉवल नहीं होगा, कुछ मतलब कोई 30 40 20 25 30 पेजेस जितने भी थे उसके। आज तक याद है कि वो ग्रीन कलर की एक परी थी जिसमें मैंने लिखा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहने लगे कि तुमने लिखा बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारी उम्र अभी ये लिखने की नहीं है, अपनी उम्र के मुताबिक जो है वो चीजें लिखा करो, ये लेकिन है अच्छा। मैम मुझे ये बताएं कि आपके फादर ने पढ़ लिया, यूजुअली होता है कि फादर तो डाइजेस्ट पढ़ने नहीं देते, शायरी करने नहीं देते, फाड़ देते हैं, स्पेशली बेटी, बेटी लिख रही है, रोमांटिक लिख रही है, तो इट मीन्स ही वाज कंट्रीब्यूटिंग, उनके इस बात ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया आपको बनाने में। खामोशी के साथ, मगर मैं कोई 15 साल की उम्र तक लाहौर में रही हूँ, पैदाइश से लेकर। 1 यूनिट का दौर था, सो मेरे वालिद वहाँ सरकारी मुलाजिम थे। हर वीकेंड पर मेरा और उनका ये था कि मुझे पूरे उस लाहौर में, आज भी, अब तो वो वैसा रहा नहीं, लॉरेंस गार्डन, जिसे फातिमा जिन्ना गार्डन बोलते हैं, मेरी पसंदीदा जगह थी। सामने मॉल रोड था, मॉल रोड पर फेरोज सन्स था। सो हर वीकेंड पर मुझे फेरोज सन्स जाना होता था।
کچھ نہ کچھ کتابیں لینی ہوتی تھی. اب ظاہر ہے اپنے ایج کے حساب سے لینی تھی. یہ بات بھی مجھے میرے والد سے ہی میں نے سنی کہ ایک دن تم نے کہا کہ یہ سامنے جو منٹو کے، مجھے یاد نہیں ہے، ان سے میں نے سنی کہ منٹو کے افسانوں کا مجموعہ رکھا تھا، کالی شلوار. تو میں نے کہا مجھے یہ لینا ہے. تو جو بک شاپ پر جو بندہ تھا اس نے کہا کہ بیٹا یہ آپ کی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، ابھی آپ بہت چھوٹی ہیں. میں نے خاصی ضد کی، پھر اس نے مجھے سمجھایا، پھر میں نے، لیکن میں نے بہت جلدی ان سب کو پڑھنا شروع کر دیا. مجھے نہیں روکا گیا. میں نے بات ہے، لیکن اس میں ایک چیز رکاوٹیں آئی گھر میں، وہ رکاوٹ اماں کی طرف سے تھی. وہ ان کے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہیں تھی کہ میں لکھ رہی ہوں. جب میں نے لکھنا اور چھپنا شروع کیا تب کی بات بتا رہی ہوں. شروع میں بچوں کی توجہ نہیں دی کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن بعد میں ان کے لیے بڑا میرا یہ شوبز کی طرف آنا سارا کچھ ان کے لیے بڑا ہی بہت ہی تکلیف دہ بات تھی، جس کی وجہ سے میں آپ کو جو چیزیں میرے بارے میں انٹرویوز ہے وہ پرانے اگر کم ملتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اماں میری جب تک اپنے پورے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی 90 پلس کی ایج ان کی لائف ان کی، لیکن جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں رہیں اور ہر چیز پر ان کو چیزیں ان کو نظر آتی تھیں اور وہ خود بہت شوق سے ٹیلی ویژن دیکھتی تھی، تب تک میں یا تو میں ٹیلی ویژن پر آتی نہیں تھی. ان کے ری ایکشن کی وجہ سے بہت دکھ ہوتا تھا، غصے سے زیادہ ان کو دکھ ہوتا تھا. اور اگر آتی تھی تو میری گھر کی ایک لڑکی تھی ملازمہ، میرے ہی گھر میں، اماں کے گھر میں، وہیں پلی بڑی، وہ پیدا ہوئی پلی بڑی. اس کی ماں تھی ہمارے پاس، حال ہی میں اس کا انتقال ہوا ہے. تو حالانکہ وہ بڑی ذہنی طور پر بڑی سلو تھی، مگر اسے جب پتہ چلتا کہ آج کے اخبار میں میری تصویر ہے تو وہ اخبار اماں تک نہیں آنے دیتی تھی، چاہے وہ کتنا بھی، وہ روزانہ اخبار پڑھتی تھی مگر وہ گم کر دیتی تھی. اگر اسے پتہ چلتا کہ میں ٹیلی ویژن پر آ رہی ہوں تو وہ پیچھے سے اس کا تار کھینچ کے نکال دیتی تھی، یہ خراب ہو گیا. تو میں بہت بعد میں آنا شروع کیا ٹیلی ویژن پر بھی، لیکن یہ دو مختلف لوگ تھے جن کے بیچ میں رائٹر بنی. ایک کو سخت اعتراض تھا اور ایک نے خاموشی سے مجھے خوب انکریج کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زیادہ انکریجمنٹ ہے میم، کیونکہ اگر باپ آپ کے اگینسٹ ہو تو بیٹیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. خاموشی بہت بڑی نعمت تھی ان کی. اصل میں باپ ہی بیٹی کو کانفیڈنس دیتا ہے، چاہے خاموشی کھڑا رہے، کچھ بھی نہ راستہ نہ روکے، تو باپ ہی بیٹی کو کانفیڈنس دیتا ہے. بالکل. میم پھر بتائیں اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد افسانے لکھے آپ نے، یہ اس پورے کیونکہ جو آپ کی اسٹرگل ہے وہ تو اس میں ہوگی نا. جنگل کے بعد تو آپ کا ماشاءاللہ ستارہ چڑھ گیا، لیکن جنگل تک پہنچنے کا تھا جو سفر، اس میں میں جب لاہور سے جب میں لاہور میں تھی 15 سال کی عمر تک، تو وہاں پر کیونکہ 1 یونٹ کا زمانہ تھا اور ایک پاکستان کی وہ اگین یہ کہ پالیسی میکرز نے جو پکچر بنا کر فائنل کی تھی اس میں پاکستان کے مقامی لوگوں کی اور ان کی زبان کی اور ان کے کلچر کی وہ بالکل دھو ڈالا تھا، مینس کر دیا تھا، اور ایک مصنوعی شناخت کے ساتھ سب آگے بڑھ رہے تھے. میں ظاہر سندھی بیک گراؤنڈ سے تھی اور میرے گھر میں سندھی بولی جاتی تھی، ماں باپ سب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سندھی میں بات کرتے تھے. تو میں جب 1 یونٹ ختم ہوا اور میں سندھ میں آئی، کراچی میں آئی،
बाबा की फिर वहाँ यहाँ से जॉब हुई जब, तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे ना तो सिंधी ठीक से बोलनी आती थी, ना तो मैं ज़हनी तौर पर खुद को सिंधी समझ पा रही थी। मैं प्योरली यूनिट के माहौल का बना हुआ एक रोबोट जैसे होता है वो थी। तो यहाँ मैंने अब शुरू में कुछ 16 साल की उम्र में मैंने एक दो अफसाने लिखे जो अखबार जहां में आए। एक अफसाना लिखा, वो तो खैर छप गया, दूसरा लिखा अखबार जहां में, तो जमाने में महमूद शाम देखते थे अखबार जहां, उनका खत आ गया। महमूद शाम का मुझे पता था कि वो कितनी बड़ी चीज है, जरा सा मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कुछ लिख सकती। पर मेरे वालिद के अंदर शायद ख्वाहिश थी कि मैं सिंधी में लिखूं। उन्होंने खामोशी से यहाँ तब तक भुट्टो साहब की हुकूमत शुरू हुई, तो उन्होंने खामोशी से एक अखबार शुरू हुई हिलाल पाकिस्तान के नाम से। उन्होंने वो घर पे शुरू करवाए और एक दिन मुझे लाकर मेरे आगे अखबार रखे और कहा कि जहाँ इतना कुछ पढ़ लेती हो वहाँ कभी कभी ये भी पढ़ लिया करो। मैंने कहा ये तो सिंधी में है। तो ने कहा हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि कभी कभी इसे पढ़ लिया कर। मुझे उसके एक बच्चा पढ़ता है, मैंने पढ़ा उसको। उसमें एक खवातीन का एक पेज निकलता था जिसे जिसकी इंचार्ज थी डॉक्टर फहमीदा हुसैन। बहुत बड़ा नाम है उनका इस वक्त। शाह लतीफ पर उनकी पीएचडी है, सिंधी लैंग्वेज और इन सब पर उनकी महारत है। तब वो खुद भी यंग एक लड़की थी, तो वो उसकी इंचार्ज थी। कि उस अखबार के चीफ एडिटर थे, उनके भाई थे जो सिंधी के बड़े राइटर, बड़े नॉवेलिस्ट। और मुझे मेरे सामने वो पेज आ गया, तो मैंने एक दो बार उसे पढ़ा और फिर मैंने एक टूटा फूटा सिंधी में अफसाना कर भेज दिया उन्हें। उन्होंने उसकी इमला दुरुस्त करके, और अगले हफ्ते मैंने देखा कि वो लगा हुआ है। बड़ा मजा आ गया मुझे, और फिर मैंने यूं सिंधी में लिखना किया। मैं बहुत जल्दी उसमें पुख्तगी भी आती गई, जाहिर है। तो मैंने सिंधी अदब को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि ज़बान को समझने के लिए मुझे पढ़ना भी पड़ा। फिर मैंने सिंधी में अफसाने बाकायदा लिखने शुरू किए, कहानियां लिखी। जंगल से पहले मेरी कहानियों के 2 मजमूए सिंधी में आ चुके थे, और मैं अपने मजे से अपने बस जो जी चाहा वो लिखा। पता चला कि लोग इस चीज को बोल्ड कहते हैं जो मैं लिख रही हूँ, लोग इस बगावत कहते हैं, लोग इस चीज को एक बागियाना, समाज से बागियाना सोच कहते हैं। मैंने डेलिबरेटली ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे अंदर जो आया मैंने लिखा। और क्या था उनके अंदर, क्या था जो बोल्ड था? जब मैंने जंगल जो लिखा था वो तकरीबन मेरी पहले मजमूए की जो कहानियां थी उन्हीं का रंग लिए हुए था। फ्यूडल मेरा जो पसंदीदा मौजू बन गया, खुद ब खुद बना, क्योंकि मैं जब यहाँ सिंध में आई, जाहिर है कि बैकग्राउंड, मेरी अम्मा का बैकग्राउंड एक कतई फ्यूडल सिस्टम से था। वो एक फ्यूडल सिस्टम की तमाम के जब्र से गुजर कर मेरे वालिद तक पहुंची थी, और दोनों एक ही खानदान के थे हालांकि, मगर मेरी वालदा के अंदर वो फ्यूडल सिस्टम के हवाले से
बड़ी बिटरनेस मौजूद थी। अच्छा, उनके वालिद नाना मेरे, उन्होंने तो खैर उनके बचपन में वो फौत हुए तो उनको याद भी नहीं थे, चेहरा याद नहीं था, मगर वो शायर थे सिंधी के और बड़ी बड़ी खूबसूरत काफियां कहीं। अम्मा बहुत अच्छा गाती थी, उनको शायरी पसंद थी, वो अपने वालिद की काफियां बड़े, उनको सुर साज का पता था, वो उस तरह से गाया करती थी सारा कुछ, वो सब अपनी जगह था। मैं आज भी सोचा करती हूँ कि डायलॉग मेरे अंदर अम्मा की तरफ से आया, क्योंकि वो जो बोलती थी वो सारा डायलॉग ही होता था, जो उनका बोलने का अंदाज था। उनके अंदर बड़ी बिटरनेस थी सारे सिस्टम्स के लिए जहां से वो गुजर के पहुंची थी। हालांकि बाद मैंने जो जिंदगी देखी, बड़ी उन्होंने शानदार जिंदगी गुजारी, हुकूमत की अपने घर पर, खानदान पर, लेकिन माजी जो था उससे शायद वो मेरे अंदर आता गया। मैंने जब कहानियां लिखी तो वो उस सब मेरे सामने वो बात करती थी, मैं सुनती थी, वो मेरे अंदर कहीं मेरे लाशऊर में वो सारे मौज़ूआत जमा होते गए, और जब मैंने कहानियां लिखना शुरू की तो वो किरदारों की सूरत में, कहानियों की सूरत में एक और अंदाज से बाहर आ गए। तो शुरू की जो कहानियां हैं वो सारी फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट हैं, जिस तरह जंगल था। तो जाहिर है कि वो लोगों को लगा कि मैं बहुत ज्यादा बोल्ड लिख रही हूँ। अम्मा को वो भी पसंद नहीं था कि मैं ये सब क्यों लिख रही हूँ, लेकिन था। फिर मैं जंगल की तरफ, मुझे टेलीविजन की तरफ कहा गया कि आप सीरियल लिखें। उसमें भी मैंने वही दिया जो मेरी आ, समाज के बारे में, जो मेरी इनिशियल इब्तदाई जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने डिलीवर कर दी, ये था। मैम, तो आपने फ्यूडल सिस्टम नहीं देखा, आपकी मदर ने देखा था। आप सिटी लाइफ में थी, लेकिन आप उसको इंटरप्रेट कर रही थी, उसको फील कर रही थी। हाउ वाज लाइक दैट? थोड़ा सा बताएंगी कैसा था वो, जो आप खुद फील कर रही थी? मैंने बताया ना कि अम्मा के अंदर बड़ी बिटरनेस रहे, वो अपनी जो लोग अपनी यादों में रहते हैं, चाहे वो बुरी हो भली हो, वो उनमें रहती थी। फिर सारे कि मैं भी यहाँ जब आई तो मैंने भी देखा लोगों को, मेरे जिस खानदान से, जाहिर के बड़े खानदान जो होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग अपने अपने मिजाज के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इसमें एक तरफ पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल अर्बन लोग, ये भी मेरे बहुत ही क्लोज रिश्ते में वो भी रहे, वो भी लोग रहे जो बिल्कुल ही जागीरदाराना सोच रखते थे, वो लोग भी रहे, वो भी करीबी रिश्तों में रहे। तो सब, और फिर गांव, मैंने जाहिर है कि यहाँ आने के बाद मैं गांव में रही तो नहीं, मगर गांव देखा जरूर मैंने, गांव के लोगों को देखा। मगर मैं समझती हूँ कि जमीन जमीन के लोग, इनके दुख सुख, इनकी बातें, ये मुझे माँ की तरफ से मिली। मारवी सिंध का किरदार है, शाह साईं ने बड़ा खूबसूरत मारवी को लिखा है, उस किरदार को। मेरे वालिद मुझे जो अपनी धरती से मोहब्बत करती थी, और अम्मा जब लाहौर में रहती थी तो लाहौर को परदेस कहती थी, और वो कराची को भी परदेस कहती थी, वो अपने गांव की बातें करती थी। तो मेरे वालिद का कहना जो है वो मालूम है। तो इसकी, तुम्हारी माँ के अंदर एक मारवी बैठी हुई है। तो मैंने एक्चुअली, जाहिर है कि उन्हें जमीन से मोहब्बत थी, उन्हें अपने गांव के पुराने घरों से मोहब्बत
थी, खंडहरों से मोहब्बत थी, उनकी बातें करती थी, उन किरदारों की, जो खूबसूरत किरदार भी थे, उनकी बातें। तो मैंने ये सब कुछ वहां से लिया। गांव देखे, गांव की जिंदगी नहीं गुजारी। इस बाद में शादी की तो खाला की फैमिली थी, उनका फ्यूडल सिस्टम था। वहाँ गांव से निकलने के लिए गाड़ी में पर्दे चादरें बांध दी अंदर अंदर की तरफ से चादर लगा दी जाती थी, खिड़की से बाहर कुछ नजर नहीं आता था। एक बार बैठी, शादी हुई, गांव गई, ऐसे रहना नहीं था, मगर जाहिर है कि गई गांव मिलने के लिए सबसे। तो पहली बार ऐसी गाड़ी में बैठी ससुर के साथ। रिश्ते में मामू भी लगते थे, बड़े दिल दिमाग के, और पूरी फैमिली इसी सोच की थी। तो चारों तरफ से चादरें बंधी हुई और मेरा सर चकरा गया। तो मैंने खींच कर सारी चादरें उतार दी। तो मामू जो ससुर भी हुए तो उन्होंने, ये क्या कर दिया, ड्राइवर बैठा है, ये वो। मैंने कहा बैठा रहे, मैं इस तरह नहीं बैठ सकती। तो वो फ्यूडल सिस्टम मैंने देखा। ये भी देखा कि वहाँ बेटियों को यूनिवर्सिटीज में भेजने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मेरा लिखना बाकियों को, जो उस घर के बाकी अफराद थे, उनको बड़ा अजीब लगता था। लेकिन फिर एक और चीज मैं हमेशा इस सिस्टम के हवाले से कहा करती हूँ। मुझे कहा जाता है कि तुम बागी हो, मैं कहती हूँ मैं बागी नहीं हूँ, मैं इख्तिलाफ करने वालों में से, और मैं अपने इख्तिलाफ का इजहार करने वालों में से हूँ, और उसका हल चाहने वालों में से हूँ। तो वो भी वक्त आया कि उस घर की बच्चियों को मैं खुद यूनिवर्सिटीज तक ले गई, उनको हॉस्टल्स में उनका रहने का बंदोबस्त किया। बच्चियां पढ़ी, किसी ने डॉक्टरी की, किसी ने मास्टर्स की, किसी ने कुछ किया, लेकिन उस घर की सारी बच्चियां पढ़ी। आई एम सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे एक बात पूछने दें कि इख्तिलाफ करने वाला अमूमन घर में मुतनाज़ा हो जाता है, फैमिलीज में मुतनाज़ा कर दिया जाता है, बदनाम हो जाता है। तो इसको कैसे स्टैंड किया आपने? मैं लड़ती नहीं हूँ, मैं लड़ने वालों में से नहीं, मैं झगड़ा नहीं करती, मैं नरमी से बात करने वालों में से। क्या गलत है क्या सही है, लड़ भी पड़ती हूँ जहां मतलब एक खुदाई फौजदारी का वो है मिजाज मेरे अंदर भी, लेकिन इख्तिलाफ जो है वो आपको, मेरे करीबी रिश्तेदारों में, मेरे करीबी रिश्तों में फिर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बड़ा मुझ पर फख्र किया, फखरिया मुझे लोगों से मिलवाया, क्योंकि मैं सिंध में बहुत कम लोगों को जानती थी। बड़े फख्र के साथ बड़ी हिम्मत दिलाई मुझे। मैंने जब जंगल लिखा था तो अम्मा मेरी को हर वक्त डर था कि मुझे राह चलते गोली लग जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने बड़ी खतरनाक काम कर दिया है। मुझे नहीं पता चलता था कि मैंने कोई खतरनाक काम किया है, लोग कहते थे। लेकिन वो लोग भी थे जिन्होंने उस माहौल में जो मेरे साथ खड़े हुए, जिन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। खानदान की से ज्यादा सिंध में मेरी बड़ी मुखालफत हुई। फ्यूडल सिस्टम के थे, फ्यूडल्स जो थे जिनका सर्वाइवल इस सिस्टम में था, उन्होंने बड़ी मुखालफत की, जिसकी वजह से डर लगता था। तो मेरे कुबलंग थे, अब दुनिया में नहीं है, कमरुज़्ज़मान शाह। उन्हें बड़े फख्र के साथ दुनिया को बताते थे, बड़े दबंग किस्म के थे, सबको बताते थे कि मेरी बहन है। हालांकि उनके बहुत हमारे एज
बहुत ज्यादा बाप बेटी वाला था फर्क, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझे मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बड़ा मुझे मजबूत किया, मेरे बैक पर खड़े रहे और तारीफ की। बाबा मेरे ने हमेशा खामोश, बिना कुछ कहे खामोश सपोर्ट दी, बस मुस्कुराते रहे और खामोश रहे, और जो मैंने किया मुझे करने दी। लेकिन मजमूई तौर पर मुझे फ्यूडल सोसाइटी से उससे जरूर ये चीजें प्रॉब्लम सामने आए, मतलब लोगों की नफरतें, लोगों के इख्तलाफात, लोगों की तनकीद, सारा करीबी रिश्तों में मैंने मोहब्बतें ज्यादा देखी, बहुत ज्यादा देखी। बल्कि मैं इस सिस्टम के लोगों के अलावा मुझे यूं तो सारा पाकिस्तान, जितने भी लोग, मुझे बहुत मैंने मोहब्बत देखी। सिंध के लोग मुझे, मतलब उस मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है जो मोहब्बत मुझे सिंध के लोगों से मिलती है आज भी। लेकिन मैं इस वक्त कराची में हूँ, कराची के उर्दू बोलने वालों के बीच में, हर तरफ मैं कहा करती हूँ खुल के। इसीलिए मैंने इख्तिलाफ की तलखी जो है मेरे दिल में नहीं रही, कभी भी नहीं रही, बड़ी मौज मस्ती में किया। मैं हमेशा कहा करती हूँ कि मैंने 30 साल की उम्र तक वो सारी मोहब्बत देख ली जिसकी तमन्ना करते हुए एक अदीब 80-90 साल की उम्र में मर जाता है, मगर उसे नहीं। मैं शोहरत की बात नहीं कर रही, मोहब्बत की बात कर, कि मुझे रीडर ने, व्यूअर ने, बहुत सुनने वालों ने, हल्का अहबाब में बहुत मोहब्बत। तसव्वुफ कहाँ आपके अंदर, ये बताएं। मेरे अंदर तसव्वुफ है। मैंने मैंने सुना है एक इंटरव्यू में आपने कहा कि आपके अंदर कोई है ऐसी चीज जो हर वक्त खटकती है। आई जस्ट नेम्ड इट तसव्वुफ, तो आप मुझे बताइए है कि नहीं है। हम लोग, मेरा ख्याल हर लिखने वाला सूफी है, उसके अंदर तसव्वुफ है। मेरे अंदर होगा, मिजाजन हम शाद अब्दुल लतीफ बिटाई की मैं उसी खानदान से हूँ जिससे वही है। सो एक घूमता घामता तस्वीर पाया होगा। मेरे वालिदैन में ये चीज थी, दोनों में। दोनों बड़े आशिक रसूल थे और दोनों ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मदीने में गुजारा। रिटायरमेंट के बाद मेरे वालिद वहीं बैठ गए, अम्मा दोनों, हम दो बहनें हैं, हम यहाँ रहे। मेरे घर के माहौल में, मेरे बहुत करीबी अजीज रिश्तों में ये बात मौजूद थी। मेरी अम्मा में तसव्वुफ था, मेरे पापा में तसव्वुफ था, बहुत मैंने वहीं से लिया होगा। है ऑब्वियसली, एक इंसान अपने माहौल से इनहेरिट करता है। वैसे भी मुझे एक सूफियाना सोच जो है, तसव्वुफ जो है, उससे कुर्बत जरूर महसूस होती है। मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा नरमी के साथ दुनिया में अपना किरदार अदा करें। अदरवाइज मैं कुछ कह नहीं सकती इससे ज्यादा, कि मैं, लगाव मेरा है, कुर्बत मेरी है, तसव्वुफ से मेरी कुर्बत है, उस सोच मुझे पसंद है। मैं, मेरा बस चले तो मैं सूफी बनकर
दुनिया छोड़ कर कहीं बैठ जाऊं, मगर हम दुनिया के लोग हैं, ऐसा सिर्फ ख्वाहिश करते हैं, अदरवाइज। मैम तो फिर अजायब खाना आपने लिख दिया, हालांकि आप तो सोसाइटी के मौजूआत पे लिख रही थी और फ्यूडलिज्म पे लिख रही थी, खवातीन पे लिख रही थी, बीच में एकदम से अजायब खाना आ गया, टोटली डिफरेंट। आपने क्या दिखाया था उसमें? इश्क हकीकी दिखाया था, इश्क मिजाजी दिखाया था? आप बताएं क्या दिखाया था? मैं उस वो जो भी था लिखना मेरा, जो बागियाना अंदाज था, जो जो भी जिसको लोग बेबाक एक राइटर की बात कह रहे थे। देखो, असल में मैंने शायद पहले भी अभी कहा कि राइटर जो है वो मजीद इसको यूं एक्सप्लेन करूं कि पानी के बहाव की तरह होता है, ग्लेशियर की तरह, पहाड़ों से, चट्टानों से, पत्थरों से टूट के निकलता है, वाह, नदी नाले में बहता हुआ, जाता हुआ, वाह, दरिया होता है, दरिया से वो समंदर में जा गिरता है। ये पूरी जर्नी होती है इंसान की, हर इंसान के जहन की, उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, बट ये होती है हर इंसान के अंदर की एक जर्नी है। सो मैं पत्थरों से टकराती हुई, पहाड़ों से टकराती हुई नीचे उतरी तो सही, उस बहाव में मैंने देखा कि कतरे कतरा कैसे नदी नालों में जज्ब होता है और वहां से कैसे दरिया में पहुंचता है, और वो कतरा कैसे समंदर में गुम होता है। ये अ, जिंदगी को, आप अपने माहौल को, अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अपने आप को समझना शुरू करते हैं, अपनी जात पर, अपने वजूद पर सोचना शुरू करते हैं। कमाल का है इंसान अपने अंदर, अगर इंसान में ये सलाहियत आ जाए, किसी भी इंसान में, ये राइटर होने की कोई बात नहीं है, अपने वजूद पर गौर करना, अपनी जात पर गौर करना, अपने अंदर की ऊंच नीच को देखना, इवन अपनी खामियों को देखना, परखना, अपनी बुराइयों को, अपनी खताओं को परखना, इन सब को तो बड़े बड़े राज खुलते हैं उस पर। ऐसी इंसान ऐसे गोश्त पोस्ट का लौथड़ा नहीं है, हर इंसान अपने अंदर एक पूरी कायनात है। तो मैंने जब अपनी जात की इस को परखते हुए, देखते हुए, महसूस करते हुए मैंने अजायब खाना, और मैंने बहुत बहुत एंजॉय किया उसको, और मुझ पर खुद अजायब खाना लिखते हुए ये फिलॉसफी जो है इंसान के अंदर के खुलती चली गई कि ये है क्या चीज, इंसान बदलता कैसे है, इंसान ने एक रूप से दूसरे रूप में दाखिल कैसे होता है, फिर वहां से वहां भी उसको चैन नहीं है, फिर एक और रूप की तरफ कैसे बढ़ता है। और अब एक चीज जो मैं कहा करती हूँ, सोचा करती हूँ कि एक्चुअली जिंदगी जो है वो वैसे भी खुद को बार बार रिक्रिएट करना है। जो इंसान खुद को रिक्रिएट नहीं कर सकता और बार बार नहीं कर सकता, बार बार अपनी मट्टी बखेर दे, बार बार, वो तब तक समझ नहीं आती। वाह, तो इन कैफियतों में मैंने शुरू शुरू में जब मैंने अपने आप पर गौर करना शुरू किया, मैं क्यों हूँ, मेरा होना क्या मैटर करता है या नहीं, तो मैंने अजायब खाना लिखा। आपने इतना मुकम्मल लिखा, इतना मुकम्मल लिखा, मैंने अभी पिछले दिनों दोबारा देखा है और मैं सोच रही अच्छा, थी कि बहुत सारे लोगों ने इश्क हकीकी पे लिखा है, इस पे लिखा है, मगर इतना मुकम्मल।
इतना मुकम्मल। मैं आपसे 1 सेकंड लूं, जी मुझे इजाजत है, स्क्रीन से 1 सेकंड, इसकी वो बैटरी खत्म हो रही है। आ 1 मिनट, यहाँ से उठकर चार्जर उठाऊंगी, बस और कुछ नहीं करना मैंने। ओके। चार्जर। थैंक यू शाजिया खान, थैंक यू फाजिका और अशफाक अहमद, शाजिया सरदार, थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमारे साथ हैं। और हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि आज हम नूरुल हुदा शाह साहिबा को जाने दें लेकिन मुझे नहीं पता कि मैम अगर आप थक जाए तो अब नूरुल हुदा शाह को जाने दें, आप लोगों थक को बहुत बोर कर दिया। नहीं, हमने तो अभी बात शुरू नहीं की, हम तो अभी जंगल से आगे ही नहीं गए, हम तो अभी जंगल में बैठे हैं। चलें, अब ये चार्ज हो गया। वहीं से बात शुरू करते हैं जहां आप बता रही थी। अजायब खान नहीं, ने नहीं, इतना लिखा, मुझे सिर्फ इसका जवाब दें। क्या जवाब दूं, किसका? सॉरी। अजायब खाना इतना मुकम्मल, यानी कि वो फिलॉसफी आपके माइंड में क्लियर थी। उस ड्रामे से ये पता चलता है कि इट वाज क्लियर इन योर माइंड। ये कैसे बस वो हुआ? ऐसा ही था, ऐसा ही था। मैंने बताया ना अभी, ऐसे ही था। आ, ये लिखने वाले की, इंसानों की अपनी कैफियत होती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कैफियत इंसान की होती हैं, लिखने वाले की भी खास तौर पर। बहुत उमूमन हमारे माहौल में फीमेल राइटर अवॉइड करती है बहुत कुछ लिखने से, यस। क्योंकि उसको सोसाइटी में, अपने रिश्तों में जवाब देना पड़ता है यस। कि इसका मतलब क्या है। मैं इसीलिए कहा करती हूँ कि मर्द राइटर आधा सोचता है, पूरा लिखता है। औरत राइटर पूरा सोचती है मगर आधा लिखती। मेजॉरिटी, सब नहीं, मैं दोनों के लिए मैं सब नहीं कह रही, हमारी जैसी सोसाइटी में ऐसा होता है। मैंने बहुत सी फीमेल राइटर से जाती तौर पर सुना है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं लिखते। इसीलिए आप देखें, हमारे यहाँ खुल के शायरी करने वाली शायराएं बहुत कम हैं, बिल्कुल। जिन्होंने खुल के शायरी की है। बिल्कुल। हैं, उर्दू में तो खैर हैं, 3-4 हैं ये बड़े नाम, लेकिन सब नहीं कर सकती। मंटो की जैसी कहानियां हमारे समाज में औरत नहीं लिखेगी, हालांकि लिख सकती है, वे नहीं लिख सकती। यहाँ की, पाकिस्तान की सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ, जबकि हिंदुस्तान की सोसाइटी में इस्मत चुगताई ने लिखा है, और बहुत ही उस जमाने में लिखा है जब औरत का वजूद ही मुस्लिम समाज में वो था। पाकिस्तान के माहौल में हमने जो नया समाज बनाया है, हमने जो अपनी नस्लों को जो समाज यहाँ दिया है पाकिस्तान के लिए, मैं उस समाज की बात कर रही हूँ, उस वहाँ जो जहन है। अदरवाइज लिख सकते हैं। अजायब खाना, मैं यही कह सकती हूँ कि समाज की कहानियां लिखते हुए, इर्द गिर्द की, मैंने कभी किसी की रियल स्टोरी कभी नहीं उठाई, खुद क्रिएट की हैं। राइटर अपने अंदर लौटता है, अपने अंदर की कैफियत को बाहर ले आता है। जो मुकम्मल होने की बात आप कह रही हैं, वो उसे समझ आ जाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसे समझ आ जाए कि मेरी इस कैफियत के माने क्या हैं, उसे ये समझ आ जाए कि इनको मैं कैसे किरदारों में ढाल सकता हूँ, तो वो लिखेगा, उसे उस तरह से लिखेगा। उसमें इश्क की कैफियत थी।
عجائب خانہ میں. لیکن وہ عشق اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو جب آپ تصوف کو اسٹڈی کریں گی تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ عشق کی ابتدا بہت ہی چھوٹی چیز سے ہوتی ہے، بہت ہی، اور پھر وہ کیسے وہ چھوٹی جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں وہ بے معنی ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کا رخ کہیں اور مڑتا چلا جاتا ہے. لیکن اصل چیز اس میں جو ہے وہ ہے کہ ایک انسان کا انسان ہونا بہت ضروری ہے. اس میں بھی یہ چیز تھی کہ انسان اگر دوسرے انسانوں کے ساتھ حق تلفیاں کرتا ہوا آ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو نہیں پا سکتا. جتنا خالی ہاتھ رکھے گا، جتنا خالی دامن رکھے گا، جتنا دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرتا جائے گا اپنے حقوق سے زیادہ، اسے یہ عشق کا معاملہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. عشق یہ نہیں ہے کہ آپ نے مطلب دعویٰ کر دیا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، میں اللہ اور رسول کا بڑا عاشق ہوں، بس میرا سجدے سے سر اٹھتا ہی نہیں ہے، یا محبوبہ یا محبوب سے محبت ہے تو بس 4 وظیفے پڑھوں تو میرے پیروں میں محبوب ہوگا، وغیرہ وغیرہ. گانے ہم سن لیں تو بس آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ نہیں، یہ آپ کو ریکریٹ کرتا ہے، انسان کو ریکریٹ کرتا ہے، اسے ریکریٹ ہونا پڑتا ہے اس میں اگر اسے اس کی سمجھ آ جائے. اور پتہ چلتا ہے کہ آپ نہیں، آپ اپنے لیے نہیں ہیں، آپ پہلے بتائیں آپ نے دوسروں کے لیے آپ کیا ہیں. وہ چیز تھی عجائب خانہ، انسان کی یہ جرنی، اس کے اندر کی جرنی، اس کو ریکریٹ کرنے کا جو ہے عمل، یہ چیز تھی اس کے اندر. یہ چیز مجھے جب سمجھ آئی تو میں نے لکھی اور میں نے بڑا انجوائے بھی کیا اسے. کمال کر رہا ہوں. اس کے بعد گو کہ میں نے دیکھا کہ آج تک میں دیکھتی ہوں کہ کئی ڈرامے لکھے گئے جو عجائب خانہ کے اس پہ پیٹرن پر کہانی لے کر، لیکن ویسا کوئی نہیں ہے. مجھے اقبال انصاری اس کے ڈائریکٹر تھے، ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ یہ عجائب خانہ کے اتنے چھلکے بن چکے ہیں اب تک، تو آپ ایک بار پھر لکھ لیجئے. ایگزیکٹلی. میں نے کہا کہ یہ اگر اتنا لکھنا آسان ہوتا تو اتنے چھلکے نہ بنانے پڑتے. یہ بہت مشکل کام ہے، یہ آپ کے اندر آئے گا تو سامنے آئے گا. تو آپ نے ری میک کرنے کا بھی نہیں سوچا؟ کیا چیز؟ سوری، ری میک کرنے کا بھی نہیں سوچا کہ اسی ڈرامے کو ری میک کر دیا جائے؟ یہ مجھے اقبال انصاری نے ری میک کے لیے ہی کہا کہ آپ اس کا وہ چھوٹا سا ڈرامہ تھا، 7-8 ایپیسوڈ تھا، 2 سال تک وہ پی ٹی وی پر پڑا رہا. اس میں ایک سین تھا جس کی وجہ سے وہ رکا رہا کہ آپ اس سین کو یا تو نکال دیں، وڈرا کریں اس سے، یا اس کو بدل دیں. میں نکالنے کو تیار نہیں تھی، پھر بدلنا پڑا. مجھے اقبال انصاری نے کہا کہ آپ کی عزت جو ہے، یہ ڈرامہ ضائع ہو جائے گا، آپ کچھ اس کا حل نکالیں. پھر ہم نے وہ سین بدل دیا. وہ سین تھا لڑکا چرچ جاتا ہے، اس میں مسجد وغیرہ یہ وہ معاملات اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ چرچ جاتا ہے، مسلمان ہے، پریسٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے دل کا یہ حال ہے. تو نام پوچھتا ہے، بتاتا ہے کہ جو نام اس کا ہے موسم. تو پریسٹ اس سے پوچھتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ بتاتا ہے کہ ہاں. پریسٹ اسے کہتا ہے کہ مسلمان ایک نماز پڑھتے ہیں جسے فجر کی نماز کہتے ہیں. سو پھر وہ اس کو ایک راستہ دکھاتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے اعلیٰ عہدیداروں کو یہ اعتراض تھا کہ یہ پریسٹ ہمیں مسلمان کرے گا. تو میں نے ان کو کہا، جو میٹنگز ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، نبوت کی تصدیق بھی
इसी तरह हुई है, आप ये बात ना करें। मगर उन्होंने कहा नहीं, हमसे बढ़ के कोई नहीं, हाँ ये आप प्रीस्ट हटाएं। तो हमने प्रीस्ट फाइनली हटाया, एक प्रोफेसर डाला और उसने कर दिया सीन। सो इसमें असल में ये सारी चीजें थी जिसने मुझे मैंने इसका रीमेक, मैंने इकबाल अंसारी को यही कहा कि मुझसे रीमेक नहीं बनेगा इसका, क्योंकि जाहिर है कि मैं फिर और बहुत सी चीजें लिखने लगी हूँ और लिखती आ रही हूँ, और व्यूअर भी बदल गया है। व्यूअर इसका हल्का वर्जन पसंद करेगा। व्यूअर इतनी फिलॉसफी अब सुनने को तैयार नहीं है। अब हमें इन चीजों का अंदाज बदलना पड़ेगा। ये व्यूअर की वजह से जो लोग कर रहे हैं उनकी मजबूरी है, वो उस तरह करते हैं उसको। मसलन मैं आपको बताऊं कि इश्क हकीकी जो है, आप ड्रामा में या आप उसमें तसव्वुफ में सूफी शायरी में देख लें, या शायरी में या कहानियों में, जब आप इश्क हकीकी को बराह रास्त कर देते हैं ना, बराह रास्त आप सारी चीज को दिखा देते हैं ना, वो अपनी डेप्थ खो देता है। फिर आप तबलीग पर उतर आते हैं, फिर आप एक तबलीगी सबक पढ़ाना शुरू करें, मुबल्लिग बनकर आप एक क्रिएटिव काम करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। ये सूफिया ने हमेशा इन बातों को कहा कि ये राज की बातें हैं। राज की बातों को राजदाराना अंदाज में क्रिएट करना पड़ता है। अब राज सुनने वाले लोग नहीं रहे, समझने वाले लोग नहीं रहे, राज सुनने का, राजदारी का रवाज नहीं रहा, जमाना बदल गया है। तो अब ऐसी चीजें ड्रामा में नहीं हो सकती। मैम लेट मी से कि मैंने जो कि उस वक्त देखा था जब ये चला था, उसके बाद मैंने अब देखा, और मुझे ये लगा कि अगर इसका रीमेक बन जाए आजकल में, क्योंकि कुछ चीजें इसमें हैं जो उस वक्त हम क्लियरली नहीं दिखा सकते थे हमारी मीडिया में, अब आप उसको बहुत ज्यादा अच्छी डायरेक्शन में आप उसी स्टोरी को अगर रीमेक करें, मेरा ख्याल है कि मुझे ये लगा इस वक्त देख के कि अभी भी ये बहुत टॉप की स्टोरी है और बहुत आगे जाने वाली है। मुझे मैं वही बात कह रही हूँ, इसका राजदाराना अंदाज जो है वो अब नहीं कर सकेंगे। खोल कर आप बड़ी बड़ी बातें आप यूं इस तरह की गुफ्तगू में नहीं कर सकते कि लड़की जा तू फला फकीर के कशकोल में ये पैसे डाल दे, फकीर की दुआ से तू आसमान हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़ी इंसान की रूह की बड़ी जद्दोजहद है, ये बात अब समझ में नहीं आती, आप नहीं कर सकते, व्यूअर नहीं मिलेगा। और फिर इस रेटिंग के जमाने में, इस भाग दौड़ में, इस हंगामा फसाद में आप कहाँ ये बातें कर सकते। आप कह रही हैं तो सही कह रही होंगी मैं क्वेश्चन नहीं करती मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा मैं इसकी रीमेक सोचिएगा इस बारे में। मैं तो खैर अभी आते हैं, सो मैं ड्रामा लिख भी नहीं रही। हाँ, मैं कुछ और काम कर रही हूँ। सो अब जिनका जमाना है, जिनका दौर है, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, बड़ा खूबसूरत लिख भी रहे हैं, कुछ अभी सीख रहे हैं, कुछ अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका दौर है, अब इनको अपना काम सामने लाना है। ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग आपको देखना नहीं चाहते या आपका काम नहीं देखना चाहते, या ये कि उस काम का ज़माना चला गया, ऐसा नहीं है। अभी भी हमारी नस्ल के जो लोग बैठे हैं वो चीजें ढूंढते हैं, हम लोग ढूंढते हैं मीडिया पे कि हमें वो वाली चीज नजर आए जो हमें आपके ड्रामों में, हसीना मोइन के ड्रामों में और उस वक्त के सारे लोगों के ड्रामों में नजर आती थी। लेकिन हसीना का ड्रामा भी फिर से बनने, इसको तो छोड़ ही दें जायब खाना। हसीना का ड्रामा वो है जो
آج کے دور میں بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے، مگر وہ بنانے والے بھی نہیں، وہ محنت بھی نہیں ہے. اب آپ ڈرامہ کی ٹیکنیک بدل چکی ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت ظاہر ہے کہ پیسہ لگا ہوا ہے نا سب کا. اس وقت پروڈیوسر ڈائریکٹر کو یا چینل کا ڈرامہ ہے تو وہ ڈائریکٹر کو پریشرائز کرتے ہیں کہ کم سے کم 15 سے 20 سین ایک دن میں نکالو. یہ جو عجائب خانہ یا اس طرح کے جو ڈرامے ہیں، یہ ایک ایک سین ایک دن میں ہوا ہے، ایسا بھی ہو چکا ہے اس میں کئی ڈراموں میں، اس وقت کے کئی ڈراموں میں. آرٹسٹ کو ابھی اس شوٹ سے نکل کر اس شوٹ میں جانا ہے، وہ الگ پریشان ہے کہ مجھے جلدی فارغ کرو. یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، بڑی محنت کا کام ہو جاتا ہے. لیکن خیر قصہ مختصر کہ میں ڈرامہ لکھ بھی نہیں رہی تو میں ابھی اس کو بالکل بالکل. اب میم میرے تو پاس اتنے میں نے سوال ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا ہے. میں نے آپ کا تقریباً 1.5 گھنٹہ ہاں تو ہم مجھے نے باتیں کی ہیں. اور آئی ایم سوری میم آپ کو بہت انٹرپٹ کرنا پڑا ہے، اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ میں آپ کو انٹرپٹ کرتی، لیکن مجھے کرنا پڑا کیونکہ یہ سوال بہت سارے تھے اور پوچھنا بہت ضروری تھا آپ سے. تو آخری سوال جو بھی ضروری ہے وہ پوچھ لیں، ایسا کرتے ہیں. اور پھر میں بیٹھی ہوں لیکن مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے. میم اب صرف یہ بتائیں کہ اگر کسی نے نور الہدا شاہ جیسا دلیر، باغی اور بولڈ بننا ہو اور مستند بننا ہو، آتھینٹک بننا ہو، تو اس عورت کو، اس رائٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں میرا جیسا بننا ضروری نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. میم میں ضروری کوئی ہے، سوسائٹی میں ایسے لوگ بہت ضروری ہیں جو بولڈ ہو. نہیں، ہر ایک اپنی ذات کے مطابق ہر ایک کو بننا چاہیے. ہم کسی دوسرے کو اس طرح نہیں کر سکتے کہ لوگ میرے جیسے بنے، آپ جیسے بنے، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن سب کچھ بننے کے لیے عورت ہو، مرد ہو، کمزور ہو، مضبوط ہو، جو بھی ہو، جس رشتے میں ہو، جس کردار میں ہو، میں بڑی یقین سے یہ بات کہتی ہوں کہ اس کی بنیاد انسان بننے ہے. پہلے وہ انسان بن جائے. آج نہیں بن پا رہا، خود کو توڑ کے دوبارہ بنائے. کل نہیں بنا، پرسوں بنائے. پرسوں نہیں بنا، اس کے بعد بناتا رہے. خود بخود مضبوط ہوتا جائے گا، خود بخود دلیر ہوتا جائے گا. خود بخود جب ہم دوسروں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حق تلفیوں سے لے کر بڑی بڑی حق تلفیوں تک، جب ہم دوسروں کی حق تلفیاں کرتے ہیں تو ہم دلیر نہیں رہتے. ہم کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک انسان کا رول، کردار ادا نہیں کیا. جس انسان اگر سوچے، کوئی عورت ہی سوچے، میں عورت کی بھی بات کروں، اگر گھر میں بیٹھی ہوئی کوئی عورت بھی سوچے کہ میں کس طرح مضبوط بنوں، میں کس طرح دلیر بنوں، سب سے پہلے دوسروں کے حقوق کو سمجھنا پڑے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی باتیں تک پھر سب آسان ہے، پھر ہم بن جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میم، تھینک یو ویری مچ. ٹائم میں نے بہت زیادہ لے لیا ہے، میں بہت بول گئی ہوں. نو میم، ایکچولی میں شرمندہ ہو رہی ہوں کہ میں نے تو آپ سے بہت کچھ پوچھنا تھا اور ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے. میں بھول گئی کہ ہمیں وہ اس طرح کا انٹرویو کرنا تھا. آپ کہاں پیدا ہوئی ہیں، آپ کون ہیں، کیا کیا لکھا ہے، آپ کے کریڈٹ پر کیا کیا ہے. نہیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب، یہ جو سوال نہیں آپ نے کیے ہیں ان کے بھی
بہت سے سوالوں کا جواب اس گفتگو میں آ چکا ہوگا کہیں نہ کہیں. ہوپ سو. میری کوشش تھی کہ میں آپ سے آج وہ باتیں پوچھوں گی جو آپ نے پہلے کہیں نہیں کی ہوں گی. میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے. مثلاً میں نے آپ سے تصوف کا پوچھا جس کے بارے میں آپ نے بہت چھوٹی سی بات کی تھی. میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک جگہ بتایا تھا کہ اگر آپ سید گھر سے نہ ہوتی تو شاید آپ اتنا بورڈ نہ لکھتی. میں نے تو آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا. ابھی بہت کچھ پوچھنا تھا میں نے, پر چلو ہم پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ. اگر ضرورت محسوس ہوئی اسے کمپلیٹ کرنے کی تو پھر ہم اس کا ایک اور پارٹ کر لیں گے بعد میں. فی الحال یہاں اس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ. بہت اچھا لگا. دبئی آؤں گی تو پھر ملوں گی میں. ضرور. یہ تو آپ مجھ سے پرامس کریں گی. پرامس انشاءاللہ. تو وہاں بیٹھ کے باتیں کر لیں گے پھر. بالکل. اوکے. خدا حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.